Hello and namaste. With the aim to spread awareness and promote better management of women's health, we welcome you to the next in the series of awareness programs focused on menopause, a part of Jackenpal's ongoing CSR initiatives. Before we proceed, there is an exciting announcement to make. There will be a poll in between the session. Please participate in the poll for a chance to win the ultimate hot flash relief kit. Go grab it. 3 participants will get the prize. Participants will be announced by Dr. Ragini Agarwal at the end of the session. आज के प्रोग्राम में हमने एक पोल की व्यवस्था रखी है जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे। आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है और एंड ऑफ द सेशन मैडम के द्वारा लकी विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। There will be 3 lucky winners to get this prize, Ultimate Hot Flash Kit. Now, to begin the webinar today, which Dr. Ragini Agarwal has graciously agreed to lead, her series of menopause dialogues will be with renowned medical experts every month on 2nd and 4th Friday. These sessions will be around 30 minutes long and will be conducted in a mix of Hindi and English languages. You can ask your question at the end. To ask a question, you have to raise your hand and your audio will be enabled to speak up. अगर आप डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाहें, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहें, तो जूम के अंदर हैंड रेज करने की व्यवस्था है। आप हैंड रेज करें, आपका ऑडियो एनेबल करेंगे, आप बात कर सकेंगी और मैडम आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगी। So today we welcome and we express our gratitude to Dr. Ragini Agarwal from Gurugram. Dr. Ragini Agarwal is a well-known gynecologist and menopause specialist, also specializes in female sexual health. She is an accomplished aesthetic, functional, and urogyne surgeon and director of AA Derma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, Haryana. In dialogue with her is Dr. Chandan Kachru, also from Gurugram. Dr. Chandan Kachru is consultant obstetrician and gynecologist at Cloud9 Hospital, Gurugram, and holds the prestigious office of Secretary Menopause Society, Gurugram, a branch of Indian Menopause Society. Welcome, Dr. Chandan Kachru, ma'am. And now, to start the program, we hand over to Dr. Ragini Agarwal, ma'am. नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आप में से बहुतों ने हमारा लास्ट प्रोग्राम भी ज्वाइन किया होगा और उसमें हमने मेनोपॉज के बारे में एक भूमिका सी बांधी थी और उसका शुरुआत किया था। मेरा एक हमेशा का एक डिक्टम है, जब भी मैं मेनोपॉज की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन गूंजता है कि मेनोपॉज इज एन इटर्नल ट्रुथ, एक जीवन का ऐसा शाश्वत सत्य है जिससे हर एक लेडी को गुजरना पड़ता है। Just to sum up in the last, what we have talked in the last program, that menopause, because of the longevity, it is going to come for a many years in the life of a woman. 20 से 30 साल की एडल्ट अवस्था आपकी मेनोपॉज में गुजरने वाली है। तो ये जो आपका गोल्डन पीरियड है, व्हाट आई से, जीवन की दूसरी पारी, उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने मेनोपॉज को समझें और समय से इसकी देखभाल करें और आगे भी आने वाले समस्याओं से अच्छे से अपने आप को जागरूक करके और हम उससे जूझ सकते हैं। तो आएंगी स्लाइड आएंगी, चिंता मत करो। तो यहाँ से अब हम आज चलते हैं। उस दिन हमने बातें की थी, इसके बहुत सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं और हम बारी बारी एक एक सिम्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है हॉट फ्लैशेस, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंड फॉर दिस आई हैव विद मी डॉक्टर चंदन कचरू, हु इज सेक्रेटरी ऑफ आवर मेनोपॉज सोसाइटी गुड़गांव। So I thought, who is the better person to interact, who is leading the office of the Gurgaon Menopause Society? I think आप हमसे सहमत होंगे ना कि जब हम बात करते हैं मेनोपॉज की समस्याओं की, तो ये समस्याएं
हाँ, ऐसी बीमारियां नहीं है जिनसे कि किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिगड़ती ही है ना। तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ती है तो हमें उसके बारे में कुछ करना तो पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा सा कोट था जो मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इट इज डिस्ट्रेसिंग टू सडनली टर्न रेड, become dripping wet with sweat, and feel like you are about to demonstrate that spontaneous internal combustion is not a hoax. So, welcome to the menopause dialogue, and we are going to discuss hot flashes. Welcome, Dr. Chandan. Thank you, ma'am. And thank you, Dr. Ragini, for inviting me to this discussion. So, मैं हॉट फ्लैशेस जो है आमतौर पे हमारी ओपीडी में जब मेनोपॉजल वुमेन आती हैं वो इसके बारे में काफी बात करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें गर्मी सी ठंडक सी लग रही है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे लोग इससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊं मैं कि मेनोपॉज से भी ज्यादा पहले पेरीमेनोपॉजल भी वुमेन ये वाली जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है हॉट फ्लैशेस की, ये सिम्टम बता देते हैं। राइट फ्रॉम 40s के बाद की जो एज होती है 45, 43, 44, 45 के हिसाब से। तो यहाँ पे पेशेंट हमारे साथ जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि कभी हमें सर्दी लग रही है, कभी हमें गर्मी लग रही है, सडनली हम नाइट स्वेट्स, नाइट में ये ज्यादा प्रॉब्लम करती है, टिंगलिंग हो जाती है, हाथों में जैसे थरथराहट सी आती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैल्पिटेशन, कहते हैं हमारा दिल घबराता है, और बाद में हमें कभी एसी बंद करना पड़ता है, कभी एसी चालू करना पड़ता है। और सच में बताएं तो कुछ कुछ बोलते हैं कि जो उनका पार्टनर है वो भी परेशान है इस बात से कि कभी इसको ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। और ये होता क्यों है, ये इस वजह से कि जो हमारे दिमाग में हमारा जो थर्मोस्टेट है उसका जो कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल, वो थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो आपने पहले भी शायद डिस्कस किए होंगे पहले सीरीज में, तो वो थोड़ा पेरीमेनोपॉजल टू मेनोपॉजल एज में कम हो जाता है। तो इस वजह से आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये ठंडे और गर्म की कहानी, ये हमारे हार्मोन्स की जुबानी चलती रहती है हमारी बॉडी में। जैसे कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, स्त्री का शरीर दो हार्मोन से गवर्न होता है, एक का नाम एस्ट्रोजन और एक का प्रोजेस्टेरोन है। तो जो ये हमारे दो लेफ्टिनेंट हैं ये सडनली हमें छोड़ के चल देते हैं और हम अकेले खड़े रह जाते हैं। तो अभी क्या है, अगर आपके रथ के दोनों पहिए हट जाएं तो रथ लड़खड़ा जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी लड़खड़ा जाती है, जो डॉक्टर चंदन ने बताया कि थर्मोस्टेट हमारा उड़ जाता है। इसमें सिर्फ ये बताना मैं चाहूंगी, ये जो सडन सेंसेशन हीट का होता है इसके कारण कई बार आपका मुंह लाल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी क्षणों के लिए आता है और चले जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, इसके कारण आपकी रात की नींद भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अब मेनोपॉज के जो बहुत सारे सिम्टम है जो हम आगे आने में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें से अपने आप में नींद ठीक से ना आना एक सिम्टम है, ऊपर से हॉट फ्लैशेस से वो गड़बड़ हो जाने से और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और एक ये बहुत बड़ी स्टडी भी है जिसने बहुत सारा इंसाइट हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्टडी थी, मल्टी सेंट्रिक थी। नॉट ओनली दैट, डिफरेंट रेसेस भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो इट्स अ बिग स्टडी। जब हम कोई भी चीज की बात करते हैं तो वी हैव टू सी वेदर इट इज ओनली इंडियन, ओनली यूरोपियन और ओनली ब्लैक्स, और कवरिंग एवरी वन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये पाया गया कि ये, जैसे डॉक्टर चंदन ने बोला, पेरी मीनोपॉज एरिया, यानी कि आपके मीनोपॉज होने के पहले से ये शुरू हो जाता है और मीनोपॉज के बाद तक साल 2 साल तक में खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, there are few females who has this problem even 10 years 12 years down the line also, and एक सेकंड, एक हाँ जी क्वेश्चन बोलिए, पूछूं मैं आपसे, बताइए ये ट्रिगर कैसे होता है? कैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि ट्रिगर हो सकता है, जैसे कोई देखिए ऐसा है कि एक बहुत सबसेट होता है जहाँ पे पीपल आर मोर वनरेबल फॉर दैट। अगर आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो उन लोगों में इसकी प्रॉब्लम बहुत होती है। स्मोकिंग के लिए एक शब्द और कहना चाहूंगी, स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर वुमेन।
Smoking give rise to many cancers also in women, more other than lung cancer, breast cancer, and cervical cancer also, and no doubt a precipitating factor for smoking. Obesity, वजन बहुत ज्यादा होना एक बहुत ही गड़बड़ चीज है, और उसका रीजन क्या है? द ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो आपको पेरिफेरी पे जाकर के थोड़ा सा कन्वर्सन होता है, जिसके कारण कैंसर बढ़ने की भी शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर ये पाया गया है जो लेडीज ओबीज होती हैं उनमें हॉट फ्लैशेस भी होते हैं मीनोपॉज होने के बाद। यंग एज में तो वो इनको बल्कि थोड़ा सा करेक्शन करता है। हाई स्ट्रेस लाइफ इज नॉट गुड, एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक लोअर एजुकेशन and race ethnicity like black women, it is more common in them than the European women. तो आप बताओ डॉक्टर चंदन, जब ऐसी लेडीज आती हैं तो उनको आप क्या एडवाइस करती हैं? मैं तो सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि जो जैसे इमीडिएट सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए दे शुड वेयर सम लेयर्ड क्लोथ्स, लाइक पहले स्वेटर पहना उसको निकाल दीजिए, एक लेयर आपकी कम हो जाएगी, थोड़ा सा ठंडा लगेगा आपको। तो प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए, पानी खूब पियो, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और डिपेंड्स अपॉन आप किस टेम्परेचर में हो वहाँ पे, जैसे ठंडी जगह में हो तो कम पानी की जरूरत है, बट हमारे जैसे जैसे हमारा देश है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। खाने में बिल्कुल सिंपल फूड, ये नहीं कि आप जैसे कि आपने पहले भी बताया ओबेसिटी रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड है ये डिजीज, जैसे देखा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये हॉट फ्लैशेस। तो इसके लिए हमें चाहिए कि वी शुड अवॉइड शुगरी फूड्स एंड मैदा, रिफाइंड फ्लोर्स, जो हम नॉर्मली लाइफस्टाइल की जब भी बात करते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए अपने आप के लाइफस्टाइल में। There are some foods which we can take, something like flax seeds, which is called a superfood. इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हॉट फ्लैशेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए, शुगर बोल जो जैसे आपने इसमें लिखा भी है, मस्त रहो, त्रस्त रहो, और मेडिटेशन, योगा। एंड एक और चीज जो मैंने पढ़ी है वो है एक्यूप्रेशर। वो कहते हैं कि एक्यूप्रेशर जैसी चीजें भी काफी मैनेज हो जाते हैं हॉट फ्लैशेस, जो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आप क्या और कर सकते हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो हमें दवाइयों के ऊपर पहुंचने के पहले पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बहुत उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक मेंटेलिटी से पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब आपको हमने पेमेंट दिया है और आपने दवाइयां तो लिखी नहीं। ये चीजें तो हम भी अपने आप पढ़ सकते थे और कर सकते थे। तो यहाँ पर ये इस बात पे मैं बार बार स्ट्रेस करके आप लोगों को बताना चाहूंगी, मीनोपॉज इज नॉट ए डिजीज, इट इज अ फेज ऑफ अ लाइफ ऑफ अ वुमेन। जैसे आप एडोलसेंट होते हैं, आप बड़े होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, वैसे ही आप प्रौढ़ावस्था से होते हुए वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं। तो जब आपका हर स्टेप आपकी लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट होता है। मैं फार्मास्यूटिकल भी कहने के पहले पेशेंट को 3 महीने तक, अनटिल इट इज अ सीवियर कंडीशन, मैं 3 महीने तक उसको यही समझाने के लिए बोलती हूँ, एक दिन में नोबडी कैन चेंज देयर लाइफ स्टाइल। एंड उसके साथ साथ जो आपने बताया लेयर्ड क्लोथ और ये सब हॉट वाटर कम पिए, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ फाइटोएस्ट्रोजन, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ऐसी चीजें भी डिस्कस होती हैं। हालांकि मेरे को इन पे ज्यादा विश्वास नहीं है, बल्कि फाइटोएस्ट्रोजन के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इसके आगे वर्ड ईस्ट्रोजन है, ये आप देखिए। हम ये सोच करके सोया खाते रहते हैं कि ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको आप लोग नोट करिए कि जब आप सोया प्रोडक्ट खाते हैं और जिन लोगों को इससे उनके आराम आता है, वो उनकी बॉडी पे एस्ट्रोजन की तरह ही एक्ट करता है। उनकी यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो सकती है, उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ब्रेस्ट में सिस्ट बन सकती है, टेंडरनेस आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ये कर सकते हैं, जो कि हम उनको साइकोलॉजिकल हेल्प कहते हैं, एक्यूपंक्चर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुलनेस, दीज आर फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड हिप्नोथेरेपी। इसके बाद जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि अगर ये आप फार्मास्यूटिकल पे कैसे जाइएगा, क्योंकि आप तो एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं,
आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप कुछ दवाइयां ही लिखेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, उसको जानने के लिए मैं उनसे हमेशा एक डायरी मेंटेन करवाती हूँ। उनको कहती हूँ उस डायरी में वो लिखें कि उनको कितनी बार ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम जब हो रही है कितनी देर रह रही है, रात में उन्हें कितनी बार जाना पड़ता है, क्या उनके पूरे कपड़े भीग जाते हैं या नहीं भीगते हैं। तो इनकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब वो कम होने लगता है और वो डायरी में मेंटेन करते हैं, तभी उनको समझ में आता है कि उनको दवाइयों का फायदा हो रहा है। और अगर ये बहुत सीवियर नहीं है, तो चूंकि हमें मालूम है ये एक सेल्फ लिमिटिंग है, तो 3-4 महीने में अगर वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे देते हैं तो वो कम हो जाता है। हम जब फार्मास्यूटिकल थेरेपी की बात करते हैं तो वो नॉन हार्मोनल या हार्मोनल, दो भाषा में उसको हम बांटते हैं। एक चीज आप मान के चलो कि नो डाउट हार्मोनल ट्रीटमेंट इज अ वंडरफुल थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉट फ्लैशेस, लेकिन इसको डायरेक्ट देने के पहले 2 कदम सोच सोच के उठाना पड़ता है। लेकिन अगर वुमेन यंग है, पेरीमिनोपॉजल है, उस समय 50 साल की एज तक इसको आप बहुत आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं इन यंगर वुमेन जिनको पीरियड्स अभी आ रहे हैं, बल्कि वो उनका पीरियड्स स्टेबल भी करती है। तो नॉन हार्मोनल में हमारे पास SSRI, जिसको हम सीरोटोनिन अपटेकर कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया हीमोस्टैट, जो आपका थर्मोस्टैट है वो ब्रेन में होता है। तो ये जो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है। तो जो ब्रेन में आपके सीरोटोनिन अपटेक के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लमेटिक करता है। तो ये SSRIs हम फर्स्ट स्टेप पे देते हैं। SSRIs और SNRIs ये बहुत सारे हमारे एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी यूज होते हैं। तो वो सारे भी साइड इफेक्ट कई बार उनके देखने को मिलते हैं, नोजिया मिलता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है लो सेक्सुअल ड्राइव मिलती है। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं पेशेंट को कि ये इसके साथ होता है। तो वेनाफ्लेक्सिन जो है ये एक अप्रूव्ड मेडिसिन है इसके लिए। इसके अलावा ये बिल्कुल नई टैबलेट आई है फेजोलिन 10, ये इसके साइड इफेक्ट कंपेरेटिवली कम है। गाबापेंटिन अभी आप लो डोज में शुरू कर सकते हैं, काफी पेशेंट को इससे बहुत फायदा मिलता है। और एक नई दवाई जो कि बड़ी पॉपुलर हुई है कोविड के बाद, एस्पिरोफ्रेम, ये एक नई एंटी डिप्रेसेंट है जो कि अगेन दी जा सकती है। लेकिन जब ये सब थेरेपी शुरू करते हैं, इन सब थेरेपी के साथ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको नहीं भूलना होता है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक दिमाग में एक बात है, जब भी आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि इससे कहीं हमारे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसका एक कनेक्शन है कैंसर की, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, क्या आपको लेना चाहिए ये हार्मोन? देखिए, अगर आपकी लाइफ मिजरेबल है और किसी भी चीज से नहीं ठीक हो रही है, तो गोल्डन चॉइस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में HRT कहते हैं, और इसका नया नाम मेडिकल हार्मोन थेरेपी हो चुका है, MST। इसकी कोई एक डोज नहीं है, इसको हमें बहुत सोच समझ के इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमाइज करके देना है। हमें ये देखना है उसको खुद को कैंसर है या उसकी फैमिली में कैंसर है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और यही नहीं, उसका वेट क्या है, उसकी और कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं, उनको सबको सामने रख करके, और उसके बाद हम उसको उसकी HRT डिसाइड करते हैं कि किस किस्म की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। डोज कितनी, कम से कम डोज से शुरू करिए और कम से कम समय के लिए, यानी एक बार आप फर्स्ट टाइम पे 3 महीने के लिए देंगे और उसके बाद उसको आप रोक करके देखेंगे कि क्या रहा। डिलीवरी सिस्टम भी देखना पड़ता है कि कैसे आप उसकी बॉडी में डिलीवर करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप इस डिस्कशन से मिली है कि कुछ लोग हमारे पास आते ही नहीं है, जैसे कि बेचारे बहुत परेशान भी होते हैं घर में, लेकिन जो घर के बड़े लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं ये तो होता ही रहता है, इससे क्या है परेशानी है, हमारे जमाने में भी तो होता रहता था ऐसा, ये सर्दी गर्मी चलती रहती है। बट शुड दे टेक द डॉक्टर्स ओपिनियन फॉर, मतलब व्हाट इज योर एडवाइस टू द जनरल पब्लिक, व्हेन शुड दे कम टू द डॉक्टर? देखिए,
हमारे दादी नानी के जमाने में बच्चे भी घर में ही पैदा हो जाते थे, तब क्या वो डॉक्टर के पास जाते थे? औरतें किस स्पीड से मरती थी डिलीवरी में, कभी किसी ने सोचा था कि आज जो है वो हजारों से सिर्फ 2 डिजिट में मरेंगी? बच्चे अपाहिज घरों में हो जाते थे। तो वो सारी चीजें चेंज हुई। और एक चीज और है, पहले कितनी औरतें कितने समय तक जिंदा रहती थी? बच्चा पैदा करते करते बुढ़ी हो जाती थी और खत्म हो जाती थी। हमारी आज के लॉन्गेविटी समय बढ़ में गई। जो एक बहुत मेजर चीज है जिसके कारण हम मेनोपॉज के बारे में इतना बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है इसमें कि हमारी लॉन्गेविटी। आज एवरेज एज 75-80 ईयर्स हो रही है। दूसरी चीज है वुमेन इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एजुकेशन। नो वुमेन वांट्स टू लीड अ ग्रैनीज लाइफ एट द एज ऑफ 50। साथ में सोशल पर्सपेक्टिव भी बदल रहे हैं। तो सब ये सब जब चीजें चेंज हो रही हैं, और चीजों के लिए जब हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नहीं सुनते हैं, तो अपनी सेहत के लिए क्यों ना डॉक्टर के पास जाके इनिशियल स्टेज पे समझें। और ये सोचना कि डॉक्टर हमेशा हमें ऐसी एडवाइस देगा जो हमें फायदा नहीं मिलेगा, ये एक बहुत गलत बात है। देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जब हम मेनोपॉज की बात करते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दूसरे हैं, बहुत हैं। बहुत डिटेल में मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है वो हॉट फ्लैशेस और श्वेत में तो गोल्डन चॉइस है ही है। साथ में वेजाइनल हेल्थ, सेक्सुअल फंक्शन भी ठीक करते हैं, मूड एंड एनर्जी लेवल्स भी ठीक करते हैं, जॉइंट पेन, मसल पेन से असर होता है। साथ में पेरीमेनोपॉजल वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, जो कि कई बार बहुत हैवी आने लगती है और लोगों को लगता है पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है, उससे भी बचाता है। साथ में बेटर स्लीप क्वालिटी और रिड्यूस इंसोम्निया करता है। और जो सबसे खास बात मैं इसके लिए आपसे करूंगी वो ये करूंगी, हार्मोन थेरेपी बदल चुकी है। आज हम वो हार्मोन्स नहीं देते हैं जो कुछ साल पहले देते थे। सिंथेटिक हार्मोन्स का जमाना जा चुका है। अब हम बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स देते हैं। जो हमारे पास आजकल जो टैबलेट्स हैं आपको देने के लिए, वो नेचुरल हार्मोन कॉम्बिनेशंस में आ चुके हैं। जो ईस्ट्रोजन होता है, उसका जो तीन तीन किस्म के ईस्ट्रोजन हमें हमारी बॉडी के लिए होते हैं, उनमें जो ईस्ट्राडायोल करके जो बॉडी का सबसे मेन हार्मोन होता है, ईस्ट्राडायोल का जो नेचुरल, इट्स अ नेचुरल हार्मोन। वी हैव दैट ईस्ट्राडायोल आल्सो इन दिस combination for the HRT। and even progesterone भी हमारे पास नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन इन द माइक्रोनाइज फॉर्म अवेलेबल हो गया है। तो जो हम आपकी ओसीपीज है वो यहाँ नहीं देते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। जो आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाते हो जिसमें जो एथेनाइल एस्ट्रियोल होता है, वो एक बहुत ज्यादा हाईली पोटेंट ईस्ट्रोजन होता है, और उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं जब हम इस उम्र में देते हैं उसको। तो चीजों की नाम वही है, लेकिन उस पैकिंग के अंदर क्या है, वो चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। इसलिए एचआरटी को ना तो हम एक, जैसे आपने बोला कि इसकी जो मिथ है इसको हमें खत्म करना चाहिए। और जो है सबसे पहली चीज है, क्यों ये बदनाम हुआ? तो जो ये बदनाम हुआ उसका सबसे मेन चीज था कि करीब 20-25 साल पहले इसको एलेक्सर ऑफ यूथ की तरह राइट एंड लेफ्ट लोगों ने लिखना भी शुरू किया था और खाना भी शुरू किया था। तो आपको ये मानना पड़ेगा ये एलेक्सर ऑफ यूथ नहीं है। प्लीज एज ग्रेसफुली। एजिंग तो आएगी आएगी, आप क्यों घबरा रहे हो? लेकिन उसमें आपको परेशान नहीं रहना है। तो आपको अगर एक बार लिख के दे दिया गया तो आप केमिस्ट से खरीद खरीद के मत खाते रहो ना। सुपरविजन में खाना है, कम से कम समय, यस, कम से कम समय में खाना है। उस डॉक्टर के पास जाना है जिसका कुछ मेनोपॉज के लिए पैशन है, कुछ उसको जानकारी है, और गाइडलाइंस के हिसाब से इसको फॉलो करके खाना है। बहुत ज्यादा ये मिथ है कि जो हॉट फ्लैशेस हैं ये कैंसर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कितना सही है ये? तो ये एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा। क्या आज हॉट फ्लैश खत्म हो गया तो अब हमें भूल जाना चाहिए? आखिर इसका क्या असर कोई हमारे बदन में पड़ता है क्या?
कोई हेल्थ इम्पैक्ट है, तो ये पाया गया है कि ये एक सिग्नल है जो आपको भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में बता रहा है। और यहीं पर आपको अपने कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। वी वुमेन have less cardiac problem than men till we have menstruation। जो हमारा इस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए यंग एज में जब तक आपको मेंसेस आ रहा होता है तो अटैक नहीं पड़ते हैं, बाद में आपका और मर्दों का एक सा हाल हो जाता है। लेकिन जिन लेडीज को हॉट फ्लैशेस बहुत आते हैं, इसीलिए इसको हम वासोमोटर सिम्टम भी कहते हैं, यानी कि आपके वेसल और सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम का भी ये सिम्टम है। तो इन औरतों में कार्डियक प्रॉब्लम्स ज्यादा मिलती है। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जिन्हें हॉट फ्लैशेस होते हैं उनको 50 to 77% इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो उनका कार्डियक असेसमेंट करना और जल्दी से अपनी कार्डियक प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। उनका मतलब है कि उनको प्रॉपर फॉलो अप पे रखना चाहिए जिनको भी हाँ। हॉट फ्लैशेस होते हैं। कार्डियक चेकअप, खासकर लाइफस्टाइल उनको अपना मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड ट्राई टू मेंटेन ए गुड BMI। So the message of today's discussion is do not suffer in silence. We women suffer in silence with many diseases. Maybe it is menstrual problem, endometriosis, sexual health, vaginal laxity, urinary incontinence, और हम चुपचाप सफर करते हैं ये सोच के कि इसका इलाज नहीं है। और हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स। सो today here we are saying end your suffering, treat your heart flashes, and improve your quality of life. Women need to hear that they are safe and effective symptom management option out there. हमारे पास तरीके हैं आपकी सफरिंग को खत्म करने के लिए, और आप इनसे सफर मत करें। अगर वो आपको लिए बॉदर समय आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहे हैं तो आप जहां भी हैं अपने शहर में क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, और इसके लिए आप इलाज ले सकते हैं। अगर आपकी डेली एक्टिविटी, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका वर्क, आपकी एबिलिटी ऑफ फंक्शन, योर एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ खराब हो रही है तो ये जरूरत है, आपका समय है डॉक्टर के पास जाने का। Embrace your golden age. It's my message to you for today. Thank you so much for your patient hearing. Thank you so much. Ma'am, thank you very much. And here I would like to request and seek your permission first for the poll that we are having today. Yeah, please. These poll questions are there. आपके पास 3 questions आएंगे इधर, आपने scroll down करके इनका आंसर देना है। इसमें से लकी विनर्स 3 निकाले जाएंगे जिनका डॉक्टर रागिनी मैम सिलेक्शन करेंगे। 3 लकी विनर्स विल बी देयर। तो आप लोग इसमें अपना आंसर दें, सबमिट करें नीचे। टेक 2 minutes मोर, आप लोग जल्दी से अपना आंसर दे दें और सबमिट कर दें पोल में। पोल हैज बीन एंडेड मैम। देयर आर 13 रिजल्ट्स एंड we would like you to select the winners, 3 winners, please. Please share the results. Okay, so we have most of the people in the 41 and 50 bracket, age bracket. Then we have 51 to 60 age bracket and 61 to 70 age bracket. Most of them are not having periods now. Irregular periods is one problem. Hot flashes is another big problem for them. Vaginal dryness and urinary urgency forgetfulness is little less than hot flashes and irregular periods. And joint pains are also as much as hot flashes and irregular periods. So winner is number 3, 8 and number 12. Right, so congratulations Shivani Bansal, Sanjana Makhija and Uma. Okay. So now we one question. Ma'am, yes ma'am. We The proceed. question of the frequency of urine. So, what happened after menopause?
द यूरोजेनाइटल एपिथेलियम, माने कि वेजाइना की झिल्ली और यूरिन की झिल्ली एक ही सोर्स से बॉडी में बनती है। दोनों ईस्ट्रोजन ही उनको जिंदा रखता है। तो विद ईस्ट्रोजन लैक दोनों की दोनों झिल्लियां पतली हो जाती हैं। तो जैसे आपकी वेजाइना में ड्राइनेस, इरिटेशन ओल्ड एज में होने लगती है, जिसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज का एक पार्ट कहते हैं। तो पहले हम उसको वल्वो वेजाइनल एट्रोफी कहते थे, और अब वो जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज कहलाता है, जिसका एक पार्ट ये वेजाइनल प्रॉब्लम है, दूसरा पार्ट सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, और तीसरा पार्ट ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा पेनफुल मैक्चुरेशन होता है और आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, टॉयलेट तक पहुंचते पहुंचते वो निकल भी जाता है, उस पर से कंट्रोल भी हट जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन यूरिन के इन्फेक्शन की दवाइयां खाने पे भी कुछ नहीं होता है, यूरिन का टेस्ट कराने पे भी उसमें यूरिन का कोई भी इन्फेक्शन नहीं आता है। तो इसको हम पार्ट ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज कहते हैं। इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज इसकी जो गोल्डन चॉइस होती है इस ट्रीटमेंट की, मुंह से ना खाकर लोकल हार्मोन्स होती हैं, और उसके साथ साथ हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, साथ में कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जैसे कि रात में पानी कम पिए। और आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसको हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस कहते हैं। ये एक किस्म का लेजर है, जिससे कि एनर्जी वेजाइना में देने से वेजाइना के अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है उसके म्यूकोजा में, और साथ साथ जो है उसके साथ साथ यूरिनरी यूरिन की जो पीछे की झिल्ली होती है, जिसकी इरिटेशन से हो रहा होता है, उसमें भी थोड़ी जान सी आ जाती है। दूसरी चीज जो इसमें आजकल हमने बहुत ही फायदेमंद पाई है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर्स आती हैं, जिनमें बैठने से कीगल की तरह की एक्सरसाइज की करंट अंदर जाती है, जो कि कम से कम 1000 कीगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उससे वहाँ पेल्विक मसल्स एक्टिवेट होने से उससे भी ब्लैडर को सपोर्ट मिलता है। तो आपका जो ये बार बार यूरिन जाने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत कम। आप सोचो कि आप 100% ठीक हो जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज तो है ही है। थोड़ी दवाइयां भी मार्केट में है, सोलनाफ्रेंसिन, ये सब हम मिराबेगॉन ये सब हम देते हैं, लेकिन इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, जो हमने अपनी प्रैक्टिस में काफी पाया है। एक तो ये ट्यूब जिसके बारे में बताया, और साथ में अगर हम ये कॉम्बिनेशन में लेजर और चेयर्स देते हैं, काफी इसका फर्क पड़ता है। मैम वी ऑल्सो हैव टू हैंड्स रेस्ड, वन इज फेनी पटेल। आप पूछना चाहेंगे कुछ? नेक्स्ट हैंड रेस्ड इज रिंकू। रिंकू, इफ you'd like to speak up. Yeah. Hi, Rinku this side. I am 46-year-old. I have one question. Actually, मुझे last मंथ से मुझे यूरिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। ऐसे ऐसा लगता है कि यूरिन निकल जाएगा। तो ये दिस इज सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज या समथिंग एल्स? देखिए, मीनोपॉज का अकेला सिम्टम ये नहीं होता है, यूरिन निकल जाएगा उसमें हमें आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। हाँ, मीनोपॉज में ये बढ़ जाता है, आपको जो यूरिन निकल जाएगा ये, इसमें ये डिस्टिंक्ट करना बहुत जरूरी है, खांसते छींकने निकलने वाला है या आपको बार बार जाना पड़ता है, और अगर आप यूरिन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो निकल जाता है। तो इसमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस के बीच में एक तो डिफरेंस देखना पड़ता है। एज के साथ ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं और इनका प्रॉब्लम आने लगता है, लेकिन ये कहना कि ये मीनोपॉज के सिम्टम है, ये वर्ड गलत है। मीनोपॉज में ये बढ़ जाते हैं। जैसा भी आपको मैंने ये पहले बताया, जिन्होंने यूरिनरी उसके लिए बोला कि मुझे बार बार यूरिन बहुत बार बार जाना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे ट्रीटमेंट बताया, तो इसमें भी वो ट्रीटमेंट फायदेमंद होता है। अगर स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। अगर बहुत सीवियर वेराइटी का स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उनमें ये ट्रीटमेंट कारगर नहीं होते हैं, यूजुअली उसमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। ओके। और मुझे ना गर्मी भी फील बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लग रहा है कि मतलब किचन में जाओ या उससे भी मतलब हाँ, तो ये बहुत। हो सकता है कि आपका मीनोपॉज सेट हो रहा हो और उसके ओके। कारण ये सारे सिम्टम आपको आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए आप जहाँ भी रहती हैं वहां पर आप अपने एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढ के उनसे मिलिए। और वैसे तो इसमें हमने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, और आपको जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है उसको एक हफ्ते का आप चार्ट बना के अगर जाएंगी
डॉक्टर को दिखाएंगी तो एक ही विजिट में आपका काफी हद तक काम हो जाता है। एक बार तो आपको, क्योंकि कई बार अपने हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उससे भी चीजें बढ़ जाती हैं। तो जैसे एंटीनेटल पीरियड में जब बच्चा पेट में होता है, आप डॉक्टर को विजिट करते हो, अपने को बताते हो, उनकी कुछ बातें खुद बताते हो, कुछ सुनते हो, तो जब मेनोपॉज आपका शुरू होता है, जैसे आप 9 महीने के लिए जाते हो, तो यहाँ तो 20-25 साल की समय की आवश्यकता है। तो आप अपने शहर में किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इनको समझ सकते हैं। Okay, thank you, ma'am. It's very nice information. Thank you so much. Thank you. भावना, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम से? Ma'am, just wanted to confirm one thing कि menopause में does thyroid also trigger in menopause because of menopause? Because I've been experiencing this for past 1 year, and now when I got it checked, so my thyroid levels were very high. So can thyroid be a reason for menopause can be reason for thyroid? देखिए, ऐसा है कि थायराइड प्रॉब्लम कई बार अननोटिस चला जाता है। मे बी यू आर हैविंग सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इवन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इज वन रीजन फॉर अ अर्ली मीनोपॉज। बहुत से लोगों को जो समय के पहले मीनोपॉज हो जाता है, उसमें थायराइड डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इनके जो सिम्टम्स हैं ये आपस में बहुत ओवरलैप करते हैं। पर से मीनोपॉज किसी को थायराइड क्या सिम्टम नहीं बढ़ा सकता है। उसकी थायराइड ग्लैंड मीनोपॉज होने से खराब नहीं हो जाती है। हाँ, एजिंग से बॉडी के हर एक ग्लैंड पे फर्क पड़ता है, थायराइड पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रॉब्लम हो रही थी और आपने देखा आपका थायराइड यानी टीएसएच आपका बढ़ा हुआ आया, टीएसएच बढ़ा हुआ आया था, या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में निकला था? Hypothyroidism. हाइपो। Yeah. तो ये जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार प्रेसिपिटेट कर जाता है, उसके कारण आपको अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है। तो दोनों को मिला के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और तब आप जांच के लिए जाते हैं। इसके लिए जो सबसे एक जरूरी मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी, जो आजकल बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित होते हैं और बहुत टाइट कंट्रोल करके रखा जाता है, खास करके जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो टीएसएच का लेवल बहुत कम करके रखा जाता है। तो ऐसा प्रेगनेंसी के बाद ऐसा नहीं है कि आपको 2.5 और 3 में रहना है, 5.5 भी ओके है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो थोड़ा सा टीएसएच लेवल ज्यादा होना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इसकी बजाय कि आप बहुत उसको टाइटली कंट्रोल करके रखें। क्योंकि जो बहुत टाइट कंट्रोल ऑफ थायराइड है वो हार्ट के ऊपर बोझा भी डाल सकता है और बहुत सारे कार्डियक अरिथमिया जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एक बार अगर आप कई सालों से थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए तो एक बार आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को विजिट करके इन बातों को फिर नए ढंग से समझें और अपने टीएसएच लेवल को दोबारा से टेस्ट करा करके और उसका बहुत टाइट कंट्रोल ना करें। और अगर आप बहुत सालों से बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हैं थायराइड की, 150-200 माइक्रोग्राम पे हैं, तो हो सकता है अब आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको कम करके 100 पे ले आए, 75 पे ले आए। ये मेरा एक बहुत ही मेन मैसेज आप सबके लिए है कि एक बार एज होने के बाद अपने को पूरे से चेकअप करा के और आपकी जो भी चलती हुई दवाइयां हैं उनको रिविजिट जरूर करिए और पॉलीफार्मेसी से बचिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पॉलीफार्मेसी से होती हैं। अब हमारे देश में जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी आने शुरू हो गए हैं, और अगर आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है और आप किसी ऐसे मेट्रो में रहते हैं जहाँ जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो एक बार आपका बेहतर होगा एक अच्छे खूबसूरत वृद्धावस्था को पाने के लिए कि आप जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट से भी कंसर्न करें। Thank you, ma'am. Ma'am, one more question, please, if it's possible. जी, Does menopause like have effect on the skin also, like the upper layer of the skin, the dryness and hair Yes. lightening and fragile, dry, हाँ, frizzy hair and dry hair? यस, ये तो सारा आपकी बढ़ती उम्र की खूबसूरतियां हैं जिनको ये कह सकती हूँ। ये उम्र है जो आपके चेहरे पे निशान छोड़ जाती है और ये बताती है हाई ईस्ट्रोजन क्यों चले गए तुम मेरे पास से। तो स्किन पतली भी होगी, ड्राई भी होगी, बाल फिजी भी होंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें
अब क्या है ना कि हर चीज की इतनी किस्म के इलाज में आ गए हैं कि पहले तो आपको अपना न्यूट्रिशन लेवल, मैं इसके लिए कभी भी किसी को नहीं कहूंगी कि आप HRT लेने बैठ जाइए। HRT कोई एलिक्सर ऑफ यूथ नहीं है। HRT सिर्फ और सिर्फ एडवाइजेबल है हॉट फ्लैशेस के लिए, या 5 years इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो, जब आपको मेंसेस जाते हैं उसके बाद अगर आपका या सडन आपकी ओवरी निकाल दी गई है, कम एज में चली गई है, आपको मेनोपॉज हो गया है, तो आपको हम HRT खाने को कहते हैं। लेकिन खाली स्किन की ब्यूटी के लिए HRT खाने का कोई मतलब नहीं है। आप एक कुछ टिप्स तो मैं भी आपको दे दूंगी। वैसे एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, मॉइस्चराइज करिए, सनस्क्रीन बहुत लगा के रखिए, धूप में कम निकला करिए, निकलिए तो चेहरे को ढक के निकलिए। और साथ में आजकल तो इतने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेजर रिसर्फेसिंग, इंजेक्टेबल्स और थ्रेड लिफ्ट, कई किस्म के फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल क्रीम्स, जो कि आपके चेहरे को काफी हद तक खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने इंटरनल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, B12, थायराइड, कोई डायबिटीज तो नहीं शुरू हो रही है। दिमाग में स्ट्रेस मत रखें। बहुत इस समय लेडीज बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे पूछते नहीं, कई बार आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हो, फाइनेंशियल टेंशन आने लगती, कई बार रिलेशनशिप टेंशन आने लगती है। तो मेरा एक ही मैसेज सबके लिए है, अब ये जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। अपने में मस्त रहिए, औरों से त्रस्त मत होइए। मीनोपॉज आपकी दूसरी पारी है और आपकी जिंदगी की दूसरी शुरुआत है। जो इच्छाएं आपने पूरी ना कर सकें, उनको शुरुआत कीजिए। एक्सरसाइज जम के करिए, बैलेंस्ड खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, चेहरे पे रौनक अपने आप आ जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, अभी एक लास्ट में ये पढ़ देती हूँ। एक लेडी है जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा हुआ, बट उन्होंने चैट में लिखा है कि मुझे भी हॉट कोल्ड स्वेट होता था, एज 46, लेग पेन भी शुरू हो रहा था, बट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और अब मैं फिट हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है, आपको एक बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मिले। अपनी इस गोल्डन ईयर को एंजॉय करिए। So now the winners, we are expecting to send your gift through, but we need your phone numbers. मैंने अभी चैट में भी लिखा है, आप अपने फोन नंबर्स हमारे साथ शेयर कर दीजिए। एक फोन नंबर हमने दे रखा है, उसके ऊपर अपना नंबर भेज दीजिए। तो अब हम दोबारा से एक बारी आपको फिर से बताना चाहेंगे, we take you through our recently launched website, which is women's health website mysaki.in. ये एक CSR इनिशिएटिव है जैक्सन पाल फार्मा का, and we have taken this initiative as a part of our commitment to improving women's health across all stages from adolescence till menopause. This website is an ongoing CSR initiative of Jackson Pal Pharma, where we are improving women's health and hygiene. अभी तक हमने एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई हैं पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड में, एंड ऑल्सो वी हैव रेज्ड अवेयरनेस थ्रू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम्स लाइक दिस वन। हमारी ये जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट mysaki.in will be focusing on providing education through doctors, through medical experts like Dr. Ragini Agarwal today with us, who will be raising awareness and telling us about menopause management. The recordings will also be available on our website. You can see it is written here, watch now. आप इधर जाके recordings फिर से देख सकते हैं, आज के प्रोग्राम की भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा भी हमारे इस वेबसाइट को ज्वाइन करेंगे तो कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी और भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे अगेन वी हैव अनदर talk which is by another menopause expert, that is Dr. Jignesh Shah, which will be about menopause clinics. So do join us. Join us every Friday for live interaction, same time 3:30. And now we thank you all, and we thank our experts, Dr. Ragini Agarwal and Chandan Kachru ma'am. Thank you so very much for being here and educating the masses. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। नमस्कार, फिर मिलेंगे।